viewers, you're watching Across the Republic. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest coming in this Monday evening. Our top stories are the Delhi fire tragedy and the tragedy at the Rajkot TRP gaming zone, which led to the lives of many innocents being lost. We're seeing that the families are asking for justice, and Republic is leading the investigation, asking the right questions. We'll get you up to speed with all the stories, but the headlines we are tracking as we are going across the Republic. Rape accused Prajwal Revanna releases new video, says he will appear before the SIT and cooperate with the probe. Republic TV has the video, but we will not give a platform to the rape accused. Republic accesses CCTV footage of Rajkot fire tragedy. CCTV footage shows sparks from the welding activity in the game zone. Staffers try to douse the flames, but their efforts are going in vain. Big development in Delhi. Baby Care Center fire tragedy case. 2 accused doctors have been arrested and sent to police custody till May 30th. Eight days after Ornav questions a blood sample cover-up, 2 doctors arrested for manipulating the blood reports. Big clincher in the Pune murder cover-up case. The doctor who manipulated the reports are close aides of NCP MLA Sunil Tingare. Landfall process of cyclone Remal begins. 1 lakh people evacuated from coastal areas. 7 killed as cyclonic storm ravages parts of Bengal. And viewers, as we go across the Republic, we talk about the Delhi fire tragedy. Expired license, no fire extinguisher installed, no fire NOC, no proper fire exits. The investigation into the tragic incident, which led to 7 innocent infants losing their lives at the Baby Care Newborn Hospital in Delhi, has led to some shocking revelations. In the latest, Dr. Naveen Kichi, the owner of the hospital, and 1 other has been sent to police custody till May 30th. Republic has been tracking the story from ground and asking the right questions. Here is more as we track all the developments. In a tragic turn of events, a devastating fire engulfed the corridors of Baby Care Newborn Hospital in Delhi, shattering the lives of many. 7 innocent newborns lost their lives in the blaze that erupted late on Saturday, leaving a community in mourning and nation in shock. The eyes of the law have turned toward Dr. Naveen Kichi, the hospital's owner, and Dr. Akash, who was on duty when the fire broke out. Both have been placed in police custody till May 30th as investigations delve into the heart-wrenching tragedy. दोनों मुलजिम वहाँ पर पेश किए गए और आईओ साहब ने जो है 5 दिन का रिमांड उनका मांगा कि हमें DVR रिकॉर्ड वो लेना है, रिकवर करना है, और वहाँ के जो CCTV कैमरेज की फुटेज थी, जो भी चीज़ें हैं, और जो इनके मालिक हैं वो जयपुर चले गए थे घटना के तुरंत बाद में वो आए हैं, तो इसलिए उन्होंने 5 दिन का रिमांड मांगा, जिसको जज साहब ने 3 दिन का रिमांड दिया। और हम ये चाहते हैं इसमें जो ये मुलजिम बने हैं, जो डॉक्टर थे वो BA MS हैं, वो बच्चों की देखभाल के लिए MBBS जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ उन्होंने एडमिट भी किया जज साहब के सामने कि मैं BA MS हूँ,
और उससे ये चला रहे थे। जो भी ऑफिशियल्स हैं, एमसीडी के हों या दिल्ली गवर्नमेंट के हों, कंसर्न ऑफिशियल्स जो कि ये कह के पल्ला छुड़ा लेते हैं कि ये वाला एनओसी नहीं दिया, हमने फायर का नहीं दिया, ये एमसीडी ने दिया। ये चीज़ें जब होंगी जब वहाँ के कंसर्न ऑफिशियल्स पर भी कार्रवाई हो, उन्हें भी मुलजिम बनाया जाए। हम ये चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के हों या एमसीडी के हों। As details emerge, the grim reality sets in. The families are inconsolable. The truth is unfathomable. 12 tiny souls were fighting for their lives within those walls when tragedy struck. What began as a flicker of hope turned into a nightmare fueled by a short circuit. And yet, amidst the grief, questions linger about the circumstances that allowed such a catastrophe to unfold. The Delhi government has swiftly intervened, ordering a magisterial probe to unearth the truth behind this unfathomable loss. Divisional Commissioner Ashwini Kumar's directive echoes the sentiments of a community seeking answers. Preliminary findings by the Delhi Fire Services paint a chilling picture of negligence and disregard for safety. A forensics team was also present at the spot to investigate the aftermath of the deadly inferno. रिपब्लिक की टीम उस जगह पे पहुंच गई है जहां पर आपने देखा होगा कि विवेक विहार में जो जिस तरीके से हादसा हुआ और हादसे के बाद जो उसका मालिक था वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसका दूसरा सेंटर भी दिल्ली में है और आप देख सकते हैं ये दूसरा सेंटर है जहां पे उसी तरीके से उसी फ्रेमवर्क में काम हो रहा था। देख सकते हैं वहां यहाँ पे भी उसी मात्रा में ऑक्सीजन के यहाँ पर पूरी तरीके से जो सिलेंडर है वो रखे हुए हैं, खुले में पूरे तरीके से रखा है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। और यहाँ पर आनन फानन में ऑक्सीजन के जो सिलेंडर वो आनन फानन में निकाले जा रहे थे। Illegal expansions, inadequate fire exits, and improper handling of oxygen cylinders highlight the systematic failures that contributed to this tragedy. As the nation mourns the precious lives lost in this horrific blaze, the call for accountability grows louder in the midst of grief and sorrow. And viewers, in what has been India's biggest cover-up, 2 doctors from Sassoon General Hospital have now been arrested. That is right. That's a big update we're tracking right now on Republic TV. These 2 doctors have now been arrested, and this is for allegedly manipulating and tampering with the blood samples. Now, this is coming in, viewers, as we track the Pune VVIP murder case. This development reveals that the blood sample of the prime accused, a super-rich VVIP brat, was discarded and replaced with someone else's. The victim's family, amidst mourning, accuses a collusion between the mafia family, the Pune police, and hospital staff in shielding the accused. Here's a full report. The Pune VVIP murder, a gut-wrenching case that has shocked the nation. These are the visuals from May 18th. Seen in this video, the super-rich VVIP brat getting out of his Porsche car. He's spotted with friends hours before the killing. And yet, a blame driver plot was orchestrated to shift blame. आपको कौन दबाव डाला था? आपको कौन विशाल अग्रवाल ने दबाव डाला था? आपको विशाल अग्रवाल ने दबाव डाला था? In a big update, 2 doctors of the Sassoon General Hospital, Dr. Ajay Tavre and Dr. Srihari Harshul, have been arrested for changing samples and manipulating the blood tests. The arrests, a week after Republic questioned the blood sample cover-up. After 8 days of relentless reporting, the Pune police has been forced to admit that the brat's sample was discarded. ब्लड टेस्ट में you need to answer on why a long rope was given to this boy. Were there 2 blood samples which were taken? Was there manipulation of the blood samples? Because it is obvious with evidence to me that the boy was drunk. In fact, he drank 49,000 rupees worth of liquor in 90 minutes.
Were there 2 blood samples taken? And why were 2 blood samples taken if it is true? See, number one, it is wrong to say that a long rope was given to the boy. Now, 2 issues on the blood report. Number one, that yes, 2 blood samples were collected as a matter of precaution. Just in case one blood report gets tampered with, we have the other one with us so that it can be used. On the hospital में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई. ऑन का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है. मतलब कि ऑन का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था. परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था. मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है. ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई. As Republic dug deeper, more proof of the super rich brat being given VIP treatment emerged. This Shiv Sena Shinde faction leader, Shankar Sangam, claims that the super brat was served pizza by the police. सबसे पहली बात, जब हमें पता चला कल्याणी नगर में रात 3 बजे दुर्घटना हुई, तो सुबह सुबह जैसे हमें पता चला, हम सब शिवसेना वडगाव शिरी के, हम एकनाथ शिंदे साहब के ग्रुप म्हणजे मुख्यमंत्री के इसमें हम है पदाधिकारी है. तो जैसे हमको घटना की मालूम गिरी, तो हम लोग हमारे वडगाव शिरी के शिवसेना के सब पदाधिकारी एक निवेदन पत्र बनाए कि यह घटना में जो दोषी है जो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए. क्योंकि दो जने की मौत हुई इसमें. खुद येरोडा के डीसीपी से हम मिलके, डीसीपी साहब मौजूद थे वहाँ पर, डीसीपी साहब को हमने निवेदन दिया कि बाबा ये घटने में जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए. तो ये सब निवेदन बाहर आने के बाद तो हमें दिखा एक जो पुलिस वाला था, उसने एक पिज़्ज़ा का बॉक्स लेके आया अंदर. तो हमने पूछा ये किसके लिए, तो उन्होंने उनका रिएक्शन आया ही नहीं. हाँ, हमने बोला पिज़्ज़ा किसके लिए. Ashwini Koshta's family awaits justice. They say that everyone, from the mafia family to the Pune cops to the doctors, colluded. विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरा एक षड्यंत्र तय कर रखा था. ये तो जाहिर है कि शुरू से ही इस केस को और अपने अग्रवाल जी अपने बेटे को बचाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं. मगर उनकी चाल मीडिया के कारण, जनता की उग्रता के कारण असफल होते चले जा रही है. पहले वो ड्राइवर और फिर अब ये डॉक्टर साहब, जबकि ये तो पहले हो जाना चाहिए. जब 24 घंटे 48 घंटे इतने घंटे के अंदर ब्लड की रिपोर्ट आ जाने चाहिए. Multiple attempts have been made to shield the VVIP brat, and the police is now being forced to admit one lapse after the other. And viewers, now let's talk about the terrible tragedy in Rajkot. The massive blaze at Rajkot's gaming zone led to deaths of 35 people. 9 of them were children. Taking suo motu cognizance, the Gujarat High Court has called the unfortunate accident a man-made disaster. Today, the Gujarat police has made the 3rd arrest in this case. One more accused in the Rajkot fire tragedy has been arrested. Republic has gone ahead and we have exposed glaring lapses and malpractices. Why was there no fire NOC? Why was the firefighting equipment not working? Here is more on this story. On Saturday, what was supposed to be a fun day for gaming enthusiasts turned into a nightmare. These are dramatic visuals that unfolded at the TRP game zone in Rajkot within a matter of minutes. The fatal inferno claimed the lives of at least 35 people, mostly children. The shattered families were unable to get a glimpse of their loved ones.
A closer look at the facts of the case revealed glaring lapses. Lapses that have altered the lives of families forever. जिस तरीके से गेम सेक्शन में आग लगी, क्या नंबर्स है सर एम्स हॉस्पिटल राजकोट में? सबसे पहले बहुत ही दुखद घटना है ये। हमारे पास हम बता दें, हमारे पास कोई भी मरीज इस घटना से रिलेटेड नहीं आया है। जब इनका पोस्टमार्टम पीडीयू हॉस्पिटल में हुआ, हमारी टीम ने उसको असिस्ट किया और उसके बाद अबाउट 16 to 17 बॉडीज़ पोस्टमार्टम के बाद हमारे पास यहाँ हमारी मोर्चरी में अभी हैं। कारण बताना मुश्किल है, वो फोरेंसिक का वो जांच का विषय है, बट चारिंग जो बच्चों की हुई है, डेड बॉडीज़ जो हमने देखी, वो या तो कपड़ों से हुई है जो उन्होंने पहन रखे थे, या फिर आग ही इतनी भयानक थी कि उसमें कोई बचने का तरीका ही नहीं था। In fact, Republic's exclusive conversation with Chief Fire Officer had confirmed these lapses. ये हमें कंफर्मेशन चाहिए था कि एनओसी वगैरह नहीं था ना ये मॉल के पास में? नहीं, हमारे पास नहीं लिया। आपके पास से नहीं लिया था ना? नहीं, अभी साइट के ऊपर उसका अभी हमने यहाँ देखा तो उसका काम चल रहा था, पाइपिंग वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह, स्प्रिंकलर वगैरह का, सबका फायर सिस्टम का काम चल रहा था। तो सर अगर एनओसी नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, तो ये गेमिंग जोन चालू कैसे था? पता नहीं मैम, हमको हमारे पास आई ही नहीं मैम, हमारे पास अप्लाई भी नहीं हुआ। आपके पास एप्लीकेशन ही नहीं है इस मॉल की तरफ से? नहीं। पर सर ये अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है कि ये कंस्ट्रक्टेड है पूरा? इसमें मैम ये पूरा फैब्रिकेशन के ऊपर है। हाँ। टीआरपी गेम जोन था और पूरा फैब्रिकेशन के ऊपर था, कोई आरसीसी का कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं था। While the owner of the gaming zone, Yuvraj Singh Solanki, and manager Nitin Jain are in custody, Rahul Rathore of the investors of the illegal gaming zone have been nabbed today. This while the Rajkot Bar Association has refused to take a stand on behalf of the accused. क्या फैसला आप लोगों द्वारा लिया गया है? आज पेशी होनी है, गिरफ्तारी जिन 2 लोगों की इस मामले में हुई है। सब उसमें हमारा राजकोट बार के 4000 वकील है, इसमें से तो मेरे ख्याल से कोई नहीं रुकेगा। अगर कोई बारगाम से आएगा तो हम शाम तक यहीं पे है, पूरा बार एसोसिएशन और राजकोट के वकील, जो वकील आएगा उसको हम रिक्वेस्ट करके उसका वीपी फाइल न करे, जैसा हम उससे बात करेंगे। आप लोगों को मैं देख रहा था मौन व्रत भी आप लोगों ने रखा, किस तरीके से देखता है बार एसोसिएशन कि बच्चे थे, बिना परमिशन के पूरा गेम जोन चल रहा था? पूरे गुजरात को हचमचा देने वाली ये घटना है। स्वाभाविक है, आज राजकोट शहर में भी जुदा जुदा एसोसिएशन है, उसने भी ये जो 1 दिवस अपना बिजनेस है वो बंद रखा है। इसलिए हम राजकोट बार एसोसिएशन ने भी फैसला किया है कि मृतक को साची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाइए। हमने बार एसोसिएशन और सभी सभ्यों ने आज 2 मिनट का मौन रखा और साची श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसका जो परिवार पर जो आपत्ति आई है तो उसमें उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, ऐसी हमने आज प्रार्थना करी है। A special bench assembled in the Gujarat High Court today as the hearing into the TRP game zone fire incident unfolded. Lasting 4.5 hours, the court reserved its orders, setting a deadline for the SIT to submit a full report in 10 days. No relief was given to the Rajkot Municipal Commissioner. A place that labelled itself as the largest gaming zone turned deadly. 35 innocent lives were killed and many others were at stake. The oversights of this fire tragedy cannot be overlooked. Rescue operations are underway and the teams claim that the bodies are burnt beyond recognition and that it would take days for the families to receive the bodies for the final rites. And we were cyclone Raymond lashed into the coast of West Bengal and Bangladesh, moving at speeds of 135 kilometers per hour plus. Now, 1 lakh people were evacuated in West Bengal. Unfortunately, 7 people have lost their lives.
as normal life was disrupted. Ahead of the landfall, PM Modi chaired a meeting to review the preparedness. Our team from sister channel Republic Bangla has been tracking every detail. Take a look. कोई जंगल का नहीं है, ये शहर कलकत्ता का है। एक बड़ा सा पेड़ वो गिर गया इस साइक्लोन के कारण, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आने जाने का जो रास्ता है वो पूरा ब्लॉक किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा एक पेड़ गिर गया है। इसलिए अभी तो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई टीम यहाँ पे नहीं है। कोलकाता पुलिस के जो स्टाफ है वो है, लेकिन कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई स्टाफ नहीं है। विपर्यय मुकाबला जो बाहिनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो आधिकारिक है वो भी यहाँ पर नहीं आए अभी तक। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगी ये जो पेड़ है, इस पेड़ के हिसाब से ये पूरी तरह से उखड़ गया। और मैं थोड़ा ऊपर जाना चाहूँगी कि यहाँ का जो हाल है मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। देखो कि यहाँ पर जो एक घर है, आसपास के जो भी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पाचिल वगैरह है, वॉल भी है, वो वॉल पूरी तरह से टूट गया। क्योंकि यहाँ का जो रूट है ना, इस पेड़ का जो रूट है वो पेड़ का रूट पूरा उखड़ गया। और इतना बड़ा एक गाछ है, ये बहुत दिन के बहुत पुराना एक गाछ है, और इस गाछ का उखड़ जाने के हिसाब से यहाँ का जो लोग है ना उसको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं थोड़ा सा चाहूँगी नीचे आने के लिए, और मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई टीम अभी तक नहीं आए, और बहुत सारा लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे। जो भी आना जाने का रास्ता है वो पूरा ब्लॉक है, और यहाँ से चढ़ के फिर उधर जाना पड़ रहा है यहाँ के जो लोग हैं उनको। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आए हैं, और वो लोग जाने के लिए फिर बैक करके गाड़ी घुमा के चले जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा बात करूँगा। भैया, आप यहाँ का रहने वाले हो? बोलिए। यहाँ के रहने वाले हो? ना इधर से। अच्छा, ये पेड़ कितने दिनों से यहाँ पे है? उखड़ गए? कोई डिजास्टर बहुत दिन से हो गया, इधर से बहुत दिन से हो गया, लेकिन अगला बार ऐसा भी गिर गया था थोड़ा सा। अभी फिर हम लोग का स्कूल पे अभी गिरा है, कितना खेती है हम लोग को पता नहीं। अभी भी रास्ता भी क्लियर नहीं हो रहा है, आने जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ से। लेकिन बहुत सारे दिखाने में दिया कि बहुत सारे गाड़ी यहाँ पर आ रहे थे, और अभी भी एक गाड़ी पीछे मुड़ के फिर चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बिजी एक रास्ते है। एक बस तो गिरा है, हम लोग जानते हैं एक बस तक। अभी तक कुछ काम नहीं हुआ अभी, तब अब कब होगा हमको पता नहीं। अभी तो आने जाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आदमी का सब। तो इधर से उधर जाने का रास्ता क्या है? उधर जाने का बुंदल गेट है, वहीं पे मेन रोड से जाने का रास्ता है। उधर जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। कॉर्पोरेशन का कोई आए थे यहाँ पे सुबह से? तो सुबह से आप देखा ही नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। और यहाँ का जो काउंसिलर है, ये तो 68 नंबर जो 68 वार्ड का कोई काउंसिलर आया नहीं अभी तक, तो आए नहीं कोई। आ जाएंगे, पता ही नहीं, आ जाएंगे तुरंत मालूम। और थोड़ी आगे तो दिखाई दिया कि बहुत पानी है वहाँ पे। तो ऐसा कि होता रहता है ये बारिश के सीजन में कब नहीं, अभी ये तो लाइन क्लियर रहता है। उसी साइड बैक साइड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऊपर से एक खुला तार, बहुत सारे तार यहाँ पर है, तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसी रास्ते में ऐसे सिचुएशन में इधर से उधर जा रहे हो, थोड़ा बहुत तो डर लग रहा होता। बहुत डर लग रहा है। वो तो बहुत पुराना साल का गाछ है ना, वहाँ से जब कितना से एक बार गिरा था, थोड़ा सा काम नहीं हुआ। अभी तक ये जो प्रॉब्लम है, अब मुसीबत में कोई आदमी ऊपर गिर जाता था, गाड़ी से गिर जाता था। ठीक, मैं दिखाना चाहूंगी कि ऐसे पेड़ के नीचे से ना आ रहे जो लोग हैं, उधर से इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसीलिए इस पेड़ के नीचे से आ रहा है। और बहुत डरवाना एक सिचुएशन अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्योंकि ऊपर बहुत तार है, ऊपर बहुत खुला तार है, इलेक्ट्रिसिटी का भी तार है। तो वो इस पेड़ उखड़ जाने से ना ये तार भी नीचे आ गया। मैं दिखाना चाहूँगी जूम करके, अगर ये दिखा सकते हो। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आली है, यहाँ पर बहुत सारे तार है, और इस बारिश में ना बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ का जो पब्लिक है वो बोल रहे थे कि विपर्यय डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो अभी यहाँ पे नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। कलकत्ता पुलिस का जो 1-2 स्टाफ है वो यहाँ पर एक गाड़ी खड़े हैं, उनमें है, उनसे बाहर नहीं आ रहे हैं। और बहुत सारे कार अभी यहाँ पे आ रहे हैं, और आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो कार फिर से वापस से जा रहा है, और दूसरे वाले कोई रास्ता है उस रास्ते से जाने का कोशिश वो लोग कर रहे हैं। यही अभी बालीगंज एरिया का छवि है। अभी तो बारिश हो रहा है, लेकिन जो जानने में आ रहा है कि बारिश फिर से बहुत बढ़ेगा, और उसके बाद अगर क्या हो वही देखने वाला चीज़ है।
And viewers, that's all we had on Across the Republic. Remember, Republic TV will continue asking the right questions, and we will keep getting you the biggest scoops on the biggest stories. Coming up next, we will go live and breaking with my colleague Deepak. Do not go anywhere.